discuss today, we are going to understand about the methods which is considered for preparation of the project planning. We are going to understand about this point, and after that we are going to move toward our success stories, today's success stories on PhonePe. PhonePe का नाम सब लोगों ने सुना है? Everyone, you all heard the name of PhonePe? Yes, ma'am. Right. Okay. So in the next class, in this class only, we are going to discuss about the PhonePe. Okay. Turn on your camera, everyone. Turn on your camera. Start with this. In the last class, we basically understand कि आपका project planning का क्या purpose है. तो project planning का क्या purpose है कि आपके performance को direct करता है. So direction of performance, acting as a medium of communication. That's because of the project, the different departments are communicate. Next, basically it is increasing the consciousness toward the work. Like the people are becoming more conscious for doing the work or accomplishment of the work, as well as it is helpful for providing the control. So these are the basic reasons, these are the purpose of project planning. And in this class, we are going to understand about the methods. So methods में सबसे first क्या method होगा? पहला, planning for the project work. ठीक है? Planning for the project work. Planning for the project work, right? So यहाँ पर आपका जो भी आप activities, जो भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ पर activities, whatever activities, एक मिनट. Basically, it should clearly indicate in detail as to how two activities of the project would be accomplished. Okay. यानी कि ये हमें help करता है define करने में कि कैसे हम project के सारे काम को accomplish कर सकते हैं. एक बार जब division of work हो गया, यानी एक बार काम जब divide हो गया, तो उस basis पर हम sequence को ready करेंगे, sequence बनाएंगे. Like for example, I am just sharing the screen. कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने काम को डिवाइड कर लिया, like for example the related with the finance, related with the marketing, anything like 1, 2, मतलब इस तरीके से वर्क है, ये सारे वर्क्स हैं आपके, ठीक है. अब इसमें से कौन फर्स्ट होना चाहिए? like this one is first, second, then this third, then fourth, then fifth, then sixth. So once we are in this stage, in planning stage, हम क्या करेंगे? एक बार अपने पूरे टास्क को प्लान कर लेंगे और डिवीजन ऑफ वर्क, जब हमारा काम डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि कौन से वर्क को कैसे करना है, यानी सीक्वेंस वाइज फिर हम वर्क को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. और हर एक टास्क में जो प्रोजेक्ट, जो भी टास्क होगा, एक एक जो वर्क होगा, एक एक प्रोसेस जो होगा, उसको हम प्रॉपरली एलोकेट कर देंगे पर्सन्स को. ठीक है कि भाई ये पर्सन जो है वो ये काम करेगा. सो दिस इज हाउ द प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट वर्क विल वर्क. ठीक है, प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट वर्क विल वर्क. ठीक है. Second one is organization manpower planning. So manpower planning, it means that what kind of people is required for completing the task. ठीक है. For conducting the project work, it is important that we will well design that task, as well as we can formulate that which task will be accomplished first, which task will be completed first. And for that, we have to analyze the skill and the knowledge the people have, and which people is suitable for doing which task. So here in the organization manpower planning, we are going to set the people according to the task which is divided in the project. ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में जो भी हमने जो डिवीजन किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो वही फर्स्ट वाला जो वर्क है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय द फाइनेंस पर्सन. The second wala work jo hai, that will be completed by the production person. So like this, we are going to set the people according to the task, and which is matched with their skill and the expertise and their experience. Clear ho gaya? Point sabko samajh mein aaya? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Turn on your camera, everyone. Turn on your camera. Turn on your camera. Okay. Every student, yes. Next one is the financial planning. See, this is a very curious, this is a very important, or it is one of the बोल सकते हैं ना कि relevant step or relevant planning we have to do. Like when we are made the project, like आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती है, खासकर रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं, वो एक शॉर्ट में एक प्रोजेक्ट को रेडी कर लेती है. देखा है, मिनिएचर टाइप का प्रोजेक्ट रेडी कर लेती है वो, और उस प्रोजेक्ट में हमारा कितना टोटल कॉस्ट जाएगा उसको फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में यहाँ पर यही चीज देखना है
कि प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट होगा वो कंपनी को कितना करना पड़ेगा, मतलब कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आई बात समझ में, कितना पैसा लगेगा टोटल। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोजेक्ट जो है आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डिफाइन करेगा, जैसे 500 करोड़ रुपीस जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट कंपनीज है कोई भी है, तो वो जो है वो अलग अलग जगह पे अपनी अपार्टमेंट फ्लैट इस तरीके से बनाती है ना, बनाती है कि नहीं। तो जब वो बनाती है तो दैट इज अ बेसिकली प्रोजेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई पटना में बनाना है तो दैट इज प्रोजेक्ट ऑफ द पटना, कि पटना में एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट और एक कॉलोनी बनानी है। So this is how the construction company is doing things. So in this stage, financial planning, they are going to analyze the overall cost of the execution and implementation of the work. कि कितना कॉस्ट जो है हमारा लगेगा इस प्रॉपर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एट द मॉडर्न टाइम्स अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी एक्टिविटी होता है क्या? हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर इन द टाइम बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान वी हैव टू एक्वायर द डिफरेंट डेटा रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्शन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट जहां भी आप बना रहे हो, एग्जाम्पल में अगर कोई कंपनी जो है वो पटना में प्रोजेक्ट बना रही है, तो जहां पर एरिया में वो प्रोजेक्ट बना रही है उससे रिलेटेड उस आसपास के एरिया का इंफॉर्मेशन, रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, रिलेटेड विद द वर्क, जो आपके वर्कर्स होंगे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेटा की रिक्वायरमेंट है आप उसको पहले कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन जो गैदर होगा उसको आप बाकी प्रोसेस में फिर यूज करिएगा। ठीक है, प्रोसेस के लिए एनालाइज करने के लिए चीजों को वी रिक्वायर डेटा। हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? डेटा की। So in the planning the information system, we are going to acquire the data. Clear हो गई बात? समझ में आया everyone? Yes, ma'am. So what methods to be considered while preparing the project planning? Planning for the project work, organization, manpower planning, financial planning, and the last planning the information system. Clear? Okay. So this is how the planning, project planning is somehow that is completed. We are going to move toward our new topic, today's new topic, and that is about buying the existing business. Acha, turn on your camera everyone and tell me one thing, like if you will get 50 lakh rupees, I'm just asking one question, like if you will get 50 lakh rupees, then how you are going to start the business? How you will start the business? Normally I'm asking that if you'll get 50 lakh rupees and you have an option to start a business, you have two options. ठीक है, दो options देती हूँ मैं। या तो नया बिजनेस स्टार्ट करो फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल नए बिजनेस आइडियाज जब हमारे पास होते हैं और हम फिर बिजनेस शुरू करते हैं, तो दैट इज स्क्रैच। ठीक है, बिजनेस बाय फ्रॉम स्क्रैच। द सेकेंड वन इज लाइक, अब इस सेकेंड में आपसे पूछ रही हूँ कि यू विल बाय द एग्जिस्टिंग बिजनेस और यू विल स्टार्ट द न्यू बिजनेस विथ स्क्रैच या बाय स्क्रैच। Existing business. Existing business. Start the new Existing business. Okay, why? Because in that business maybe the goodwill and reputation will be already created and that business will be winning in the market. We don't have to put too much effort to run it. Good. So basically, if we are talking about the risk, that is less associated with the existing business as comparison to when we are starting the business with by scratch, right? True? सही बात है ये कि रिस्क जो है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कम है एज कंपैरिजन टू व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस बाय स्क्रैच. So in today's class, we are going to understand about that why the existing business purchasing is best or relevant as comparison to when we are purchasing जो आपका क्या है purchasing the business. मतलब अगर आप नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप पुराने मतलब कोई पुराने बिजनेस को एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब आप परचेज कर रहे हैं
तो आपके लिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने से कितना बेनिफिशियल है कि पुराने ही बिजनेस को जब आप परचेज करते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्या होता है और किस तरीके से जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, what things we just need to consider when we are purchasing the existing business. So first of all, अगर हम बात करें आपके existing business का, तो that is better option as comparison to the starting from the scratch. क्यों? बिकॉज आपको बहुत ज्यादा लेगवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस का ऑलरेडी कस्टमर बेस है मार्केट में। कस्टमर बेस सबको पता है क्या होता है? कस्टमर बेस सबको पता है क्या होता है? यस मैम। मतलब ऑलरेडी मार्केट में उसके कस्टमर्स होंगे, ऑलरेडी उनके पास एम्प्लॉइज होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस और फंक्शंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे घर में मम्मी खाना बना के देती हैं तो कितने इजीली हम लोग खा लेते हैं, ट्रू? एंड व्हेन यू विल स्टार्ट कुकिंग देन द प्रोसेस विल बी लॉन्ग, राइट? सही बात है ना? तो हियर द सेम सिचुएशन इज विथ, like when you will get everything done, like you have employees, like you have a customer base, you know where to market all the things, so every information और every मतलब जितने भी प्रोसीजर्स हैं लगभग आधे कंप्लीटेड हैं। तो ऐसे बिजनेस को परचेज करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है? ट्रू? ठीक है। अब इसका अगर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा? व्हाट विल बी द प्रोसेस व्हेन यू आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस? तो सबसे पहली बात, फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस। लाइक अगर जैसे अभी विश्वजीत ने कहा कि मैम अगर ऐसा मुझे पैसे मेरे पास होंगे तो आई विल ट्राई टू परचेज द एग्जिस्टिंग बिजनेस, बट फॉर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द सुटेबिलिटी। या सुटेबल बिजनेस को हम फाइंड आउट करेंगे। पहला, एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है, यानी कि ऑलरेडी जो मार्केट में है बिजनेस उसको पहले हम प्रॉपर बिजनेस को फाइंड आउट करेंगे। अब सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस तो सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं है ना, ट्रू? तो मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वी जस्ट ट्राई टू फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस, कि कौन से बिजनेस को हम परचेज कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस सुटेबल है, राइट? तो फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट प्रोसेस व्हेन वी आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस। सबसे पहले एक सुटेबल बिजनेस को देखिए, फाइंड कीजिए। क्लियर? क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, गेटिंग द इंफॉर्मेशन यू नीड। अब अगर आपको कोई बिजनेस मिल भी गया तो जरूरी तो नहीं है कि वो बिजनेस को परचेज कर ही लेंगे। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट वट एवर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द बिजनेस। क्या पता कि बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा ना हो, बिजनेस प्रॉपरली रन ना कर रहा हो, गुडविल डेटोरिएट हो रखा हो, गुडविल बहुत डिक्लाइन स्टेज में हो, इक्विटी खराब हो, ब्रांड इक्विटी। तो ऐसे केस में हमें वो बिजनेस हमारे लिए फिर सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट में उसका पहले इमेज खराब है तो अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कौन आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा? नो वन, राइट? सो वी जस्ट नीड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द बिजनेस। वंस वी विल फाइंड द सुटेबल बिजनेस, then we just need to analyze the thing, and for that we are going to collect the information related with that business. Clear? Second point clear everyone? Third point, determining the price. अब now the question is कि like जो आपका एसेट, कई बार आपका एसेट वैल्यूएशन बिजनेस का 10 लाख हो, लेकिन उसके अलावा आपका जो गुडविल वगैरह सब उसमें तो एसेट वैल्यूएशन तो वो भी आ जाएगा। मान लीजिए बिजनेस का वैल्यू 10 लाख हो लेकिन उसको वो 20 लाख में सेल कर रहा है। कौन भाई? जो सेलर है वो 20 लाख में सेल कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट 20 लाख, so here what you are doing now, what you will do, you are going to negotiate the price, यानी आप बार्गेनिंग करिएगा। तो पहले तो प्राइस डिटरमाइन कीजिए कि उस बिजनेस का फिर क्या प्राइस है। जब आपका लेने का मन बन गया, ठीक है, once you will decide to purchase, then after that you are going to determine the price. The seller will tell you that the cost of this business is 20 lakh. Clear? Now
नेगोशिएटिंग द डील, अब यहाँ पर आप नेगोशिएशन कीजिएगा प्राइस में, टर्म्स एंड कंडीशंस में, एग्रीमेंट जो भी है उसमें आप नेगोशिएशन कीजिएगा. वंस द नेगोशिएशन इज डन, देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइनेंसिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने का भी आपने बिजनेस को फाइनलाइज किया, अब आप उसको पैसा उसका पेमेंट करो. क्या करो? पैसा पेमेंट कर दो. नाउ यू हैव टू डू द transaction. So these are the stages which is involved when we are buying a existing business. First thing, finding a suitable business. Second, getting the information you need, whatever is related with the business. Then determining the price. Once the price is determined, then negotiating the deal and then financing the transaction. So this is a way of buying an existing business. Clear? क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्या क्या स्टेजेस होंगे? एवरीवन? Yes, ma'am. टर्न ऑन योर कैमरा. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. यस, चलिए सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन करके बैठे क्लास में. चलिए, तो नाउ अब ये सारी चीजें तो हो गई एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप बिजनेस को परचेज करते हैं तो आपका रिस्क कम हो गया, मिनिमाइज हो गया? Either you will purchase existing business or you will start business with scratch. The risk will always associated. Like maybe you will get the train which is already running on the platform. It doesn't mean that you are able to run that on the same platform in the proper way. True? चलता फिरता गाड़ी मिल गया तो जरूरी नहीं है ना कि गाड़ी को सही डेस्टिनेशन पे लेके जाओगे, जरूरी तो नहीं है. So the same situation is with this. ठीक है? So some quality still required. Either you will purchasing an existing business, we have to minimize the risk. को हमें minimize करना चाहिए तब भी, existing business है तो भी. As comparison to scratch के comparison में आपका ये existing business ज्यादा secure हो सकता है, लेकिन risk बिल्कुल भी नहीं हो ऐसा तो नहीं है. So for some steps are even required to minimize the risk. What are those things? Second, first thing, do self evaluation. सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं उसके लिए आप कैपेबल हैं कि नहीं, उसको रन करने के लिए यू आर कैपेबल और नॉट. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को भी बोला कि ट्रेन वाली बात, तो ये बात सही है कि यू आर अ गुड ड्राइवर और नॉट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड फॉर दैट यू हैव टू डू द सेल्फ इवैल्यूएशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि आप एक रनिंग बिजनेस के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, कैपेबल हैं कि नहीं उस रनिंग बिजनेस को चला पाने के लिए आगे के लिए. तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में यहाँ बात हो रहा है कि, और एक और भी चीज, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस आप परचेज कर रहे हैं वो आपके गोल के साथ, आपके पर्सनालिटी और एबिलिटीज के साथ वो प्रॉपर है या नहीं. आ रही बात समझ में कि whatever business you are purchasing, that is suitable with your, that is compatible with your goal, your ideas or personality or not. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई पर्सन है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, अब कोई पर्सन है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अब उसको कोई डिजिटल मार्केटिंग का पूरा उसको कोई बिजनेस सेल कर देगा और वो परचेज कर लेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज और उसका जो स्किल है, उसका जो गोल है, दैट इज नॉट मैचिंग विद द बिजनेस व्हाट एवर ही परचेज. ठीक है, अगर कोई इंजीनियरिंग पर्सन है और जो सॉफ्टवेयर के साथ डील करना चाहता है, सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो फॉर देम द आईटी कंपनी इज मोर सुटेबल, राइट. सो पहली चीज तो आपको क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आप एक रनिंग बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सकिएगा या नहीं. ठीक है, इन द नॉर्मल टर्म यू आर एबल टू रन द रनिंग बिजनेस और नॉट. सेकेंड, जस्ट ट्राई टू compare your ideas, your personality and your goal with that running business. मतलब वो जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ अपने आप आइडियाज को मैच कीजिए. नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट क्या देखना है आपको, कलेक्ट कीजिए सारे जो भी इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस से रिलेटेड, रनिंग बिजनेस से जब आप रिलेटेड, अगर कोई बिजनेस, कोई भी अगर आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए सारे इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, साथ साथ में मैक्रो एस्पेक्ट के साथ कंपेयर कीजिए. मैक्रो एस्पेक्ट क्या हुआ, व्हाट इज मैक्रो एस्पेक्ट?
भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना मैक्रो एस्पेक्ट, नहीं पढ़ा था? External नहीं environment. पढ़ा था क्या? मैक्रो एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा था? Yes, ma'am. So it is talking about the macro aspects only. कि आगे चल के ये मतलब मैक्रो एस्पेक्ट्स के हिसाब से बिजनेस को बेसिकली आप एनालाइज कीजिए कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आपके इस बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. यू हैव टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड विद दैट टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कीजिए. इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट गोल को देखिए आपके बिजनेस के साथ, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ मैच कर रहा है या नहीं. उसके अलावा आप ये देखिए कि यू आर कैपेबल फॉर रन विद दैट बिजनेस और नॉट. ठीक है, उसके अलावा आप प्रोस्पेक्टिव सेलर से कांटेक्ट कीजिए. जो भी आपको प्रोस्पेक्टिव सेलर लग रहे हैं, जिनसे भी आपको बिजनेस परचेज करना है, उनसे कांटेक्ट कीजिए. डोंट यूज सो मेनी मीडिएटर्स व्हेन यू आर परचेजिंग द बिजनेस. कभी भी बहुत सारे मीडिएटर्स को इंडल्ज मत कीजिए, इन्वॉल्व मत कीजिए. जब आप बिजनेस को परचेज करें, ट्राई टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द सेलर. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट रेज. अब यहां पर आप इवैल्यूएट कीजिए बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को. ये बिजनेस आगे तक चलेगा कि नहीं. तो वो तो इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करेंगे ना, बाकी मैक्रो एस्पेक्ट से रिलेटेड, माइक्रो एस्पेक्ट से रिलेटेड, और जब आप ये सब चीजों को आप देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इवैल्यूएट आप कर सकते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर क्या है. ठीक है, प्राइस को डिटरमाइन कीजिए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या रेंज होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए. ये तो आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर बेसिकली, इट इज बेसिकली फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क इन व्हेन यू आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस. नेक्स्ट वन इज रेज द नेसेसरी फाइनेंस. Once the deal is done, then you have to very much concerned toward raising the fund. For example, maybe you have a saving of 50 lakh rupees, but the business का जो range है that is 1 crore. तो 50 लाख रुपीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से. तो फटाफट फाइनेंशियल जो भी आपकी सिचुएशन है उस टाइम पे, उसको देखते हुए अपना पैसे को अरेंज कीजिए. एक बार पैसे अरेंज हो गए तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. और ट्रांजैक्शन जब भी आप कर रहे हैं, दैट शुड बी इन अ लीगल फॉर्मेट. यानी कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको पोजीशन उस बिजनेस का मिल रहा है, तो वो लीगल स्टैम्प पेपर में आपको पोजीशन जो है वो आपको मिलना चाहिए. डोंट बेस्ड ऑन द वर्बल एग्रीमेंट. वर्बल एग्रीमेंट इज टोटली इनवैलिड एंड इट इज वॉइड. ठीक है, तो वर्बल आप देखिए, जो भी आपको पेपर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो भी पेपर्स दिए जा रहे हैं, दैट शुड बी इन अ स्टैम्प पेपर. स्टैम्प पेपर में वो होना चाहिए. समझ जाइए हमेशा एक बात, स्टैम्प पेपर में अगर कोई नॉर्म्स और प्रोविजंस प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ है लीगल कॉन्सेप्ट में, दैट इज वॉइड. Implement the takeover. Once the agreement is done, once the possession you will get, then you will start doing work and the takeover is completed. Means you already take that business. So the legal formalities, legal documentation, the compatibility, the evaluation, information, proper price determination, these are basically required for minimizing the risk when you are purchasing the existing business. Clear? Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. So let's move toward one term. एक question है यहाँ पर कि is the price right? अब कौन सा प्राइस सही होगा? क्या ये प्राइस सही है? अब एग्जाम्पल में कोई A पर्सन है, एक A पर्सन है, A पर्सन जो है वो आपके B पर्सन जो है ये बायर है और A जो है ये सेलर है. अब जो सेलर है ये ऑब्वियस बात है कि ये तो अपने हिसाब से प्राइस बताएगा आपको. मान लीजिए इसने प्राइस बताया 50 लाख. अब B जो है वो निगोशिएशन के टाइम पे, यानी कि प्राइस को कम करवाने के लिए, देखो अब कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्राइस सुटेबल लगेगा, तो सस्ता लगेगा, तो ये तो बिना निगोशिएशन के इस पैसे को देने के लिए रेडी है. लेकिन अगर B जो है वो देख रहा है कि दिस 50 लाख रुपीज इज टू मच, तो ही इज गोइंग टू निगोशिएट.
अब निगोशिएशन के बेसिस क्या होंगे, यानी किस बेसिस पे आप निगोशिएशन करवा सकते हैं। नो डाउट अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग बिजनेस का, तो किसी ने आपको अपना डेडिकेशन और एफर्ट जो है वो आपको दिया है, ठीक है, थ्रू प्रोवाइडिंग और थ्रू सेलिंग देयर ओन बिजनेस, इट इज अ वे वेयर he or she is giving you his own dedication and effort जो उसने अपने बिजनेस में लगाया होगा, उसको वो पैसे में कन्वर्ट करके आपसे वो पैसा ले रहा है। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी उस बिजनेस की, किसी पर्सन ने उसको वहां तक पहुंचाया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको लेके गया, अब उसने अपने पूरे डेडिकेशन एफर्ट वगैरह को उसको उसने कैपिटलाइज कर दिया, यानी अब उसको वो सेल करना है। तो यहाँ पर अगर वो अपने डेडिकेशन को आपको दे रहा है, तो इन शॉर्ट ही वांट अ बेटर अमाउंट, वो उसे एक अच्छा सही अमाउंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सही बात है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, जितना मैं बता रही हूँ, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं एवरीवन? Yes, ma'am. सो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अब आपके बिजनेस को जब भी आप उसके लिए साउंड इन्वेस्टमेंट आप नहीं करिएगा, तो हो सकता है कि वो ना परचेज भी ना करे आपके बिजनेस को, मतलब वो आपके बिजनेस को अपने बिजनेस को सेल ना करे। तो यहाँ पर सेलर पे भी बहुत सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं और आपके बायर पे भी डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द बिजनेस। If the seller is giving you his dedication and effort through that business, then he want a sound amount, sound investment the buyer need to do. That is going to attract the seller in the market. अब किस किस बेसिस पे हम निगोशिएशन कर सकते हैं? पहली चीज, according to the past data and the past experience of that business. अगर हमने कोई बिजनेस जो है उसका पूरा डेटा निकाला और डेटा निकालने के बाद पता लगा कि जो XYZ जो बिजनेस है ये मार्केट में बहुत ही इसका इमेज डेटोरिएट कंडीशन में है, यानी इसका गुडविल जो है ये बहुत ही डिक्लाइन है, तो ऐसे बिजनेस को परचेज करिएगा। तो इसके लिए जो आपका XYZ जो है उसका जो सेलर है वो आपको लो कॉस्ट में भी इस तरीके का बिजनेस प्रोवाइड कर देगा। सही बात है? क्लियर है? So when the market image or the image of that business is not appropriate, in that situation you can negotiate a lot, you can bargain a lot and you can take the business in low cost. ये एक सिचुएशन हुआ, सबको क्लियर हो रहा है? सेकंड सिचुएशन क्या होगा? अब यहाँ पर रीजन ऑफ सेल जो होगा, रीजन ऑफ सेल ये भी मैटर करेगा कि भाई जो सेलर है वो किस रीजन से इस बिजनेस को सेल करना चाह रहा है। सेलर का रीजन क्या है? सेलर का रीजन क्या है आपके प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर बिजनेस को सेल करने का? सो अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी किसी वजह से जब सेलर इस पर्टिकुलर बिजनेस को सेल कर रहा है, अगर उसका रीजन आपने एनालाइज कर लिया कि जैसे कि मान लीजिए कि जो सेलर है वो बहुत बुरी तरीके से बैड डेप्ट या फिर बोल सकते हैं कि वो बैंक डेप्ट में घिरा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा लोन जो है उसके ऊपर है। अब लोन को चुकाने के लिए ये जो सेलर है वो बिजनेस को सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई ना कि सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है बिजनेस को सेल करने के अलावा, तो हेयर यू कैन निगोशिएट एंड यू कैन बेसिकली गिव लो कॉस्ट टू द बिजनेस। लो कॉस्ट में आप वो बिजनेस को परचेज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये सिचुएशन? ये रीजन क्लियर हुआ? सेकंड रीजन क्या है? मान लीजिए कि जो सेलर है उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? सेलर की डेथ हो गई, यानी जो बिजनेस का ओनर था उसकी डेथ हो गई। अब ऐसे केस में उस बिजनेस को रन करने वाला कोई पर्सन घर में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में कई बार उस पर्टिकुलर बिजनेस को सेल किया जाता है, और ऐसे केस में जब सेल हो रहा है तो आप निगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एनी हाउ जो है वो डूब ही जाएगा लॉन्ग टर्म में अगर उसको किसी ने हैंड ओवर किसी को नहीं किया गया, तो दे डोंट हैव सो मच ऑप्शन। सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू कैन पे द लो कॉस्ट, यानी बायर को यहाँ फायदा हो जाएगा कि वो लो कॉस्ट में उसको बिजनेस मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको कि कौन कौन से सिचुएशन में हम निगोशिएशन कर सकते हैं?
एवरीवन आई एम आस्किंग समथिंग। बस एक दो बच्चे मुझे लगता है जवाब देते हैं, बाकी बच्चे, बाकी प्रफुल्ल, अदीबा, प्रवीण, माही, नीशा, मुस्कान, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट क्या रीजन हो सकता है? मान लीजिए कि जो सेलर है वो बहुत इल हेल्थ, मतलब बहुत ही बीमार है। अब ऐसे केस में वो बिजनेस को तो रन नहीं कर पाएगा, तो ये सिचुएशन में भी आपका लो कॉस्ट पर बिजनेस आपको मिल सकता है। इस टाइप के जो बिजनेस है जिनके सेलर जो है इल हेल्थ है, बीमार हैं, या उसकी डेथ हो गई है, या तो कोई बैड डेट है, बहुत बैंक का लोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इन सारी कंडीशंस में आपका जो लोन, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा ना, वो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब क्या है? ये सारी चीजें तो रीजंस पे हो गई। पहला तो हो गया आपके पास डेटा पे, अगर आपका बिजनेस का डेटा बहुत अच्छा नहीं है, बिजनेस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मार्केट में बहुत पुअर कंडीशन है, पुअर परफॉर्मेंस है बिजनेस का, तो ऐसे केस में आपको लो कॉस्ट में मिल जाएगा बिजनेस। दूसरा कुछ रीजंस पे बेस्ड है कि बिजनेस आपको कब लो कॉस्ट में मिलेगा, जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो सेलर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लोन है, तो ऐसे केस में आपको लो कॉस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत से तुरंत बेचना पड़ेगा जब वो बहुत जल्दी में हो बिजनेस को सेल करने में। तो ऐसे सिचुएशन में आप लो कॉस्ट में आप बिजनेस परचेज कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो। या तो जो सेलर है उसकी डेथ हो चुकी है, बिजनेस चलाने वाला कोई पर्सन नहीं है, या फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो पर्टिकुलर आपका सेलर है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो अब बिल्कुल भी इनकैपेबल हो गया है बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये सिचुएशन हो गया। अब नेक्स्ट है कि इसके अलावा और क्या तरीके हैं जब आप निगोशिएशन कर सकते हैं। अब जो आपके पर्सन की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप निगोशिएशन कैसा कर पाते हैं। ठीक है, so how you can negotiate that also depend upon the person, that how he or she is able to negotiate with the seller। बहुत लोगों में निगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, लेट मी गिव द एग्जांपल। लड़कियां बताओ, दिस इज ट्रू और नॉट? So let me tell you, so there they are even able to purchase 500 rupees का सामान 50 रुपए में खरीद लेते हैं। Yes. So that is the capability of the person। Some people are very much poor when they are basically facing such kind of situation। निगोशिएशन की बारी आती है तो बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि पर्सन जो है वो किस तरीके से निगोशिएट कर पा रहा है। अगर वो पर्सन एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है और उसको बिजनेस का आइडिया है, या उसने पहले भी का बिजनेस परचेज किया है, तो हो सकता है उसका निगोशिएशन पावर जो है स्ट्रांग हो। तो एक्सपीरियंस की वजह से हम निगोशिएशन करते हैं। जैसे मैंने आपको मार्केट का एग्जांपल दिया, तो वहां पर आप जो है सीखिएगा, जब एक बार दो बार जब जाइएगा मार्केट में, द थर्ड टाइम यू विल लर्न द थिंग कि आपको कैसे निगोशिएट करना है। तो दैट पर्सन हैज एक्सपीरियंस, स्किल्ड एंड दे आर कैपेबल टू निगोशिएट। तो कई बार निगोशिएशन उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में भी निगोशिएशन बेस्ट होगा तो प्राइस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मार्केट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर बिजनेस का प्राइस। मार्केट में अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है, बहुत ही मंदी चल रही है, तो ऐसे केस में आपको लो कॉस्ट पर भी बिजनेस अवेलेबल हो सकता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस आप परचेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगी कि अगर आपके मार्केट में ऐसे बहुत सारे परचेजर या बायर हैं जो आपके बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, तो कंपटीशन हाई है, तब कहीं वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्राइस होगा बिजनेस का वो हाई होगा, ना कि वो लो होगा। अगर मान लीजिए कि आपके अलावा 10 और लोग हैं जो उस बिजनेस को परचेज करने में इंटरेस्टेड है ना, तो ऐसे केस में सेलर को पता है कि उसके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर आपने उसके प्राइस पे आपने बात मतलब आगे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है वो परचेज कर लेगा। So when there is so many alternatives and buyers are present in the market, so sometimes the existing business price is increase rather than decrease। Clear? Clear हो गया? अब एक और भी चीज है, ये सारे पॉइंट समझ में आया कि निगोशिएशन कैसे कर सकते हैं, हाई प्राइस और लो प्राइस के सिचुएशन कब होंगे। क्लियर हो गया? Yes, ma'am.
Okay. In the next class, we are going to understand about the information is the key. Why information is required when we are purchasing the existing business. तो क्यों इंफॉर्मेशन जरूरी है? खैर हमने स्टेज पढ़ लिया, रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो सारे तरीके देख लिए, और कैसे प्राइस को कैसे निगोशिएशन कर सकते हैं, क्या कौन सा प्राइस सही है, कब खरीदना है बिजनेस, क्या सिचुएशन है, क्या कितना निगोशिएट कर सकते हैं, ये सारे टर्म्स भी पढ़ लिए हम लोगों ने. क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग मूव करेंगे अपने टुडे सक्सेस स्टोरी पे, और वो क्या है? सक्सेस स्टोरी पे, और वो है फोन पे. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड इट. अच्छा, तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ओके, चलिए. So how many of you are using PhonePe? Raise your hand. Yes, ma'am. Raise your hand. I guess majority of the people are using PhonePe. Yes, ma'am. मतलब लगभग सब लोग ही यूज करते हैं PhonePe, है ना? गुड. तो यहाँ पर हम PhonePe के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी स्टोरी शुरू हुई और PhonePe का क्या यूटिलाइजेशन है. खैर अगर मैं अभी डिजिटल एरा की बात करूं तो द पीपल आर स्टॉप्ड यूजिंग द कैश. ये बात सही है. इवन इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो दैट पर्सन हु विल नेवर कैरी द कैश. व्हाई? द कैश इज ऑलवेज अ रिस्की थिंग. लाइक इफ यू आर गोइंग समवेयर और आपके पास कैश है मान लीजिए, तो उसके चोरी होने का बहुत ज्यादा डर होता है कि नहीं? सही बात है. चोरी हो सकता है, गिर सकता है. और उसके बाद जब कैश कैरी करने का जब आपका बोल सकते हैं जब वो सिस्टम खत्म हुआ, तो आपका आया प्लास्टिक कार्ड सिस्टम. प्लास्टिक कार्ड में क्या होता था कि लाइक वी आर कैरिंग द डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड वी आर बेसिकली मेकिंग परचेजिंग बाय यूजिंग दैट कार्ड. मतलब हम परचेज करते थे उन कार्ड को यूज करके या पेमेंट करने के लिए. डेबिट कार्ड के थ्रू हम पैसा विड्रॉ करते थे. तो दिस इज हाउ द प्लास्टिक कार्ड जो था उसका यूटिलाइजेशन चल रहा था. लेकिन प्लास्टिक कार्ड्स के साथ भी क्या प्रॉब्लम था कि भाई कई बार ऐसा होता था कि कभी हम किसी एरिया में गए, वहां पर आपका एटीएम ही अवेलेबल नहीं है, तो कैश कहाँ से विड्रॉ करेंगे? पॉसिबल? सही बात है. पॉसिबिलिटी इज देयर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी है इस चीज की भी. और जैसे आपकी कैश की थेफ्ट की चोरी के चांसेस हैं, वैसे ही आपका सेम सिचुएशन कार्ड के साथ भी है. कहीं भी अगर वो कार्ड गिर गया या कहीं भी वो चोरी हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका अच्छा खासा पैसा रिस्क पे आ जाएगा. तो कैश तो कई बार लिमिटेड है, तो 2000-3000 तो वो उतना रिस्क पे है. लेकिन अगर आपका पूरा अकाउंट का जो पर्टिकुलर जो आपका डेबिट कार्ड है जो आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, तो पूरा आपका अकाउंट ही एक तरीके से क्या हो गया? रिस्क जोन में चला गया. So that was the situation which earlier people were facing, and because of this reason, in this digital era, we are getting the option that we are able to make the payment via using so many apps. ठीक है? So one PhonePe application is also the part of that. अगर हम बात करें मोबाइल ऐप की, मोबाइल एप्लीकेशन की, मतलब ये PhonePe जो है that can be only utilized when you have a smartphone. So I think लगभग इंडिया में 90% people are using smartphone. So this is a mobile app and PhonePe that can be used for payment of the groceries, utility bills, phone recharge, etc. ठीक है? PhonePe जो है ये आपका लार्ज ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा इससे, PhonePe से. और ये एक तरीके से यूपीआई है, यूपीआई बेस्ड ऐप है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफायर. ये आपका यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है और 2015 में इसको लाया गया, इसको फाउंड किया गया. और उसी साल लगभग नेक्स्ट ईयर में फ्लिपकार्ट ने PhonePe को एक्वायर कर लिया. ठीक है? तो PhonePe ने क्या कर लिया? PhonePe को किसने एक्वायर किया? फ्लिपकार्ट ने. ठीक है? अब PhonePe जो है डिजिटल पेमेंट में अभी सबसे नंबर 1 पे चल रहा है. इवन गूगल पे से भी ज्यादा PhonePe के आपके कौन है? कस्टमर्स है. तो 2015 में इसको फाउंड किया गया और एक साल के बाद फ्लिपकार्ट ने इसको क्या कर लिया? इसको एक्वायर कर लिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट को समझ आ गया कि दिस PhonePe इज गोइंग टू वर्क अ लॉट इन द फ्यूचर में ये बहुत अच्छा सही काम करेगा. तो दे अंडरस्टैंड अबाउट इट. लेट मी टेल यू अबाउट सम कंपनीज हाईलाइट. लाइक द हेडक्वार्टर ऑफ द PhonePe इज इन बैंगलोर.
सेकंड फाउंडर इसके 3 पर्सन है, समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर एंड राहुल चरी। ठीक है, फाउंड कब हुआ है? ये दिसंबर 2015 में। और ये आपका सेक्टर कौन है? फिनटेक सेक्टर है। और वैल्यूएशन अगर देखें तो लगभग $5.5 बिलियन 2021 में इसका वैल्यूएशन रहा है। अभी इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नाउ फ्लिपकार्ट। अब इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन बन गया? फ्लिपकार्ट बन गया है। तो 2015 में ये जब फोन पे जो है डिजिटल पेमेंट कंपनी जो है ये आया, तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज के साथ नहीं था। इट हैव अराउंड 11 लैंग्वेजेस, मतलब 11 लैंग्वेजेस में वी आर एबल टू यूज द फोन पे। ठीक है, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है आपका, ये फर्स्ट जो यूपीआई बेस्ड आपका एप्लीकेशन था। उसके अलावा ये जो ऐप है ये आपको पीओएस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टोर में जाइए, इनके पास पीओएस मशीन है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे से जो बेसिकली जो स्क्वायर शेप का जो आपका मशीन होता है जिसमें आपका क्यूआर कोड होता है, थ्रू विच वी आर एबल टू स्कैन एंड डू द पेमेंट। सो दे हैव अ पीओएस मशीन। यू कैन और कौन कौन से फंक्शंस है इसमें? यू कैन सेंड द मनी क्विकली टू द पीपल, आप दूसरे को पैसे क्विकली इंस्टेंट भेज सकते हैं। टर्न ऑन योर कैमरा, मुझे तो लग रहा है कि मैं ब्लैक बोर्ड को पढ़ा रही हूँ। टर्न ऑन योर कैमरा everyone. So 2-3 people are only like they are disturbed, उनका ही कैमरा ऑन रहता है, बाकी का चाहिए। मुझे बच्चे दिखने तो चाहिए, मुझे लग रहा पता नहीं मैं किससे पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब ये क्या क्या मतलब क्या क्या फंक्शन करता है आपका जो फोन पे है। पहली चीज कि आप पैसा अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं बाय यूजिंग द फोन पे। सेकेंड थिंग, यू कैन चेक द बैंक बैलेंस, आप अपने बैंक बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसके थ्रू गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं, डीटीएच पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, गैस बिल पेमेंट एंड अदर बिल्स पेमेंट। तो यहाँ पर ये आपका जो इसका यूटिलिटी है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, सो फोन पे जो है आपका ये एक तरीके से मेजॉरिटी, और ये आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड है। The PhonePe has received its legal sanction from the RBI to operate an account aggregator. तो यहाँ पर PhonePe जो है ये फाइनेंशियल डेटा को कभी भी आपका इधर उधर सिक्रेसी मेंटेन करता है, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। आप PhonePe से कई जगह पे पेमेंट कर सकते हो, बट योर इंफॉर्मेशन, योर नेम इज ओनली गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, बट नेवर द डिटेल अकाउंट डिटेल्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फोन पे अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो लगभग अभी 76% इसका ग्रोथ हो चुका है लास्ट ईयर से, सोच के देखिए। और इसके अभी पता है कितने कस्टमर्स है? लगभग 46.3% इसका मार्केट शेयर है। गूगल पे का 36.4 है, फोन पे का 46.3 है। सोचिए कितना ज्यादा हाई है इवन फोन पे का। अगर ये दिसंबर 7 क्या बोल रहे हो मैम? क्योंकि पेमेंट स्टक नहीं होता है मैम। हाँ, और एक और भी चीज है ना, हो जाता है। ये गूगल पे जो है उसके 36.4 है और इसके आपके 46.3 है। सोच रहे हो कितना हाई है। अब इसका वो भी ये डेटा जो है कब मिला है? दिसंबर 7, 2021 में। अब इसके फाउंडर्स और टीम के बारे में देखते हैं। 3 पर्सन जो समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर, राहुल चरी। तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताओ इनका क्या, ये तीनों जो है ना एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज है। एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज, यानी ये तीनों पहले फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे और उसके बाद जॉब करने के बाद दे बेसिकली फाउंडेड फ्लिपकार्ट, ये फाउंडेड फोन पे। अब इन्होंने वापस से अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट को ही सेल कर दिया। ठीक है, तो जो तीनों जो है यहाँ पे समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर और राहुल चरी, ये फाउंडर्स हैं। और ये आप देख सकते हो राहुल चरी एंड समीर निगम। तो समीर निगम की कहानी में थोड़ा बताती हूँ। समीर निगम जो है ही इज अ सीईओ ऑफ फोन पे। कौन है ये? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपके फोन पे का। और ये पहले इन्होंने एज ए फ्लिपकार्ट में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया है। और ये स्टूडेंट है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, एंड ही कंप्लीटेड द एमबीए फ्रॉम द वॉर्टन स्कूल। वॉर्टन स्कूल से इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है। राहुल चरी की अगर हम बात करें तो राहुल चरी जो है ही इज अ फाउंडर एंड सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर एट फोन पे।
और ये पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन्होंने एडेमो सिस्टम्स में काम किया अपने इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद सन माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया जहां पर इन्होंने फ्लिपकार्ट में भी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम किया है, ठीक है। तो ये आपके राहुल चरी जो है, ये भी इन्होंने भी फ्लिपकार्ट में जॉब किया है। ये आपके वर्जिन इंजीनियर हैं, और वर्जिन इंजीनियर जो हैं इन्होंने CRO, ये CRO हैं आपके फोन पे के, ठीक है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर आई गेस, CRO है, और इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम किया है आपके एमगो में, और उसके बाद इन्होंने फ्लिपकार्ट में भी जॉब किया है। तो ये जो तीनों है, दे ऑल थ्री आर बेसिकली द एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द फ्लिपकार्ट, ठीक है। और अगर मैं अभी बात करूं, और इनकी जो पढ़ाई है वर्जिन इंजीनियर की, इनकी जो एजुकेशन है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पढ़ाई किया, बाद में इन्होंने मास्टर डिग्री किया कंप्यूटर साइंस में, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया। अगर मैं अभी की सिचुएशन बताऊं तो लगभग फोन पे के पास लगभग 3,500 एम्प्लॉयज हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉयज? 3.5 के एम्प्लॉयज आर देयर इन द फोन पे अक्रॉस द कंट्री। क्लियर? समझ में आ रहा है सब? अब फोन पे की जो स्टार्टअप स्टोरी है बताती हूँ कि ये तीनों फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज थे। इस ऐप को बनाने के टाइम पर इन तीनों को ये पता था कि इस ऐप का पोटेंशियल बहुत हाई है, यानी आगे चल के बहुत काम आने वाला है, और ये फ्लिपकार्ट को भी ये बहुत जल्दी समझ आया और इसने तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और एक्वायर कर लिया बिल्कुल अगले ही साल। तो एक तरीके से देयर बाय दे आर रिटर्निंग द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज टू इट्स पेरेंट्स फ्लिपकार्ट। ये एक फ्रेज यूज किया गया है कि जो कह सकते हैं कि एक्स फ्लिपकार्ट जो एम्प्लॉयज थे, जिन्होंने सारे आइडियाज वगैरह फ्लिपकार्ट के थ्रू लिया और उसके बाद फिर उस ऐप को डेवलप करके वापस से उस फ्लिपकार्ट को ही वापस कर दिया एक तरीके से, वो इस सेंस में बोला जा रहा है। अच्छा, तुम लोग को ये भी पता होगा ना कि जो फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स हैं, आपके फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स हैं बिनी बंसल एंड सचिन बंसल, वो पहले अमेजोन में काम करते थे। किसमें काम करते थे? अमेजोन में। तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज विच यू आर एक्वायरिंग when you are doing the job, that is also one of the important facts to starting a new business. True? Because when we are giving our 9 or 10 hours to any organization, we are able to understand whatever the facts and whatever the knowledge and information is required to run a business. सही बात है ना? So this is how the story of the PhonePe was started. Like the potential, these three person understand, that is basically led to start a business PhonePe. What is the mission and vision of PhonePe? If we are talking about the mission, it is basically like universal, seamless and safe mobile payment होना चाहिए आपके ecosystem में. And second one is आपका vision क्या है? Vision है कि to build a large, scalable and the open transaction ecosystem that create a maximum positive impact for all stakeholders. If we are talking about the name, तो नेम देखो इन्होंने कैसा यूज किया है। गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, so everywhere there is a PAY पे, so they understand about it। पे का यूटिलाइजेशन ये समझ गए, क्योंकि पे जहां पर भी है लगभग ये सारे डिजिटल फॉर्म में पेमेंट करने के लिए यूज हो रहा है, जैसे आपका गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे। इसीलिए इन्होंने ऐप का जो नाम है वो पे यूज किया यहाँ पर, लेकिन PAY की जगह PE, इसीलिए इन्होंने हिंदी वाला पे ले लिया और इसीलिए इन्होंने लोगो भी हिंदी वाला यूज किया, प में एक ही मात्रा पे, ठीक है। So what kind of color combination they are using for their logo? The violet color and the white color and the Hindi connotation of their brand name. हिंदी में नाम लिखा है इन्होंने पे। अगर इसकी बिजनेस मॉडल की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है और ये ऐप के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी एक बैंक से दूसरे बैंक में। उसके अलावा आप ग्रोसरीज, इंश्योरेंस वगैरह सब चीजों के लिए यू कैन यूज द फोन पे, एज वेल एज यू कैन परचेज द इंश्योरेंस। नाउ डेज ना इंश्योरेंस का भी आप फोन पे से इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आ गया है ना, आया है ना। SIP भी होता है मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि IRDAI के
के थ्रू इसको अथॉरिटी मिल गया है कि दे आर एबल टू सेल दैट, लाइक एजेंट कैसे आपके इंश्योरेंस एजेंट सेल करते हैं इंश्योरेंस को, वैसे इनको भी मिल गया है, दे आर वर्किंग एज एन एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट है ये, जो कि आपका इसके थ्रू आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो फोन पे ने पीओएस मशीन, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पीओएस मशीन है हर एक, ऑलमोस्ट हर एक शॉप में, जैसे गूगल पे का जो मशीन है ना, पीओएस मशीन हर जगह दिखता है, वैसे ही आपका फोन पे का जो मशीन है आपको हर जगह दिख जाएगा, लगभग हर किराना स्टोर, हर एक शॉप में ये अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, अब फोन पे जो है अब एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज फॉर्म भी बन गया, जो मैंने बताया कि अब डिजिटल पेमेंट और मर्चेंट एग्रीगेटर जो है, अब यहाँ पर इनको लाइसेंस मिल गया है इंश्योरेंस ब्रोकिंग का, किसके थ्रू, आरडीआई के थ्रू, जो मैंने बताया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको राइट दे दिया है कि दैट दे आर एबल टू सेल द इंश्योरेंस एज वेल। तो अब आपकी बात की जाए कि बिजनेस मॉडल इनका कैसे चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पेमेंट को लेकर के इन्होंने कितना सारा एरिया को इनहांस कर दिया है, लाइक यू कैन डू द पेमेंट वाया यूजिंग द पीओएस मशीन, they are UPI based, so you can do the transfer from account to account, so they enhance their work या फिर पेमेंट मेथड्स a lot। अब इसके रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने, इनका जो रेवेन्यू जो है ना, ये किस तरीके से कलेक्ट होता है कि लाइक जैसे आपने फोन पे जो है वो पूरा कमीशन बेस्ड है, जितना ज्यादा यूजर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि जियो का रिचार्ज बहुत लोग फोन पे को यूज करके करा रहे हैं, तो जियो किसका पार्ट है, रिलायंस का। अब ना रिलायंस इज गोइंग टू पे द कमीशन ओवर इट, जितने लोग भी आपके फोन पे को यूज करके रिचार्ज करा रहे हैं, नाउ द कंपनी इज गोइंग टू गिव द कमीशन टू द फोन पे, so it is totally based on the commission। and the second thing, the company is also using phone pay for advertisement। जैसे आप फोन पे को ओपन कीजिएगा, आपको नीचे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखेंगे डिफरेंट वेरियस कंपनीज के, so even the revenue which is generated under the phone pay, that is via these methods, like through advertisement and by commission which they will get from the corporate। जैसे अगर आपने रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाया और आपने उसके लिए पेमेंट किया, तो रेस्टोरेंट वाला जो है वो कमीशन देगा फोन पे को। So this is how it is working। और फोन पे जो है, it is now utilized with the other application, like you can use स्विगी से, स्विगी यूज कर सकते हो, जोमैटो, ओला वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन में you can make the payment via using the phone pay। क्लियर हो गई बात, समझ में आया एवरीवन? यस मैम। Yes, ओके। ma'am. और बीच में इसका थोड़ा सा राइवल जो पेटीएम था, दे बेसिकली डिड नॉट सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑब्वियसली द पेटीएम इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर। पेमेंट के लिए हम पेटीएम भी यूज करते हैं, so basically Paytm also did not support this concept of charging the customers and reported as saying, मतलब उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक प्रोसेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर said for the phone pay। What are the startup challenges? See, it is totally related with the finance, पैसा से रिलेटेड है और आपके पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था, that challenge is related with the लीगल आपके जो भी नॉर्म्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना और लीगल वे में आपको राइट मिलना कि आप पेमेंट करवा सके अपने एप्लीकेशन से। ठीक है, तो फोन पे ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड था स्टार्टिंग में, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा और उसके बाद तुरंत से ही उनका एक्वायर भी कर लिया फ्लिपकार्ट ने उसे। 2017 में फोन पे को ब्लॉक कर दिया गया था आईसीआईसीआई के द्वारा, बिकॉज फोन पे का जो ट्रांजैक्शन था वो एनसीसीआई गाइडलाइन के साथ मैच नहीं हो रहा, ये कहकर आईसीआईसीआई ने इसको जनवरी 14 में ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई यूपीआई नॉर्म से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यूपीआई नॉर्म्स को वायोलेट कर रहा है। एयरटेल ने भी फोन पे का ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया था सेम टाइम पर ही। तो फोन पे बेसिकली फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड बाद में जो इशू था दैट वाज रिजॉल्व, और वो 2017 फरवरी में ये सब कुछ रिजॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूं फंडिंग इन्वेस्टर्स की, तो वी आर एबल टू सी जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पर्टिकुलरली फोन पे so there are two companies। first one is Walmart, that is a leading मतलब it is basically we can say Walmart जो है ये रिटेल का आपका क्या है, it is a emergence जो है रिटेल का, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का, वो बेसिकली Walmart के थ्रू है। तो Walmart एंड फ्लिपकार्ट जो है ये दोनों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है आपके फोन पे पर। एक्विजिशन, फोन पे ने 2-3 कंपनीज एक्वायर किया, जैसे इंडस ऐप बाजार एंड ज़ॉपर। उसके अलावा इसकी पार्टनरशिप जो है बहुत सारे से है, जैसे इसकी पार्टनरशिप एक्सिस बैंक से है, यस बैंक के साथ है, फ्लिपकार्ट के साथ है ऑन डिजिटाइज द कैश ऑन डिलीवरी, केबीएफसी के साथ है।
दे आर द पार्टनर्स ऑफ द फोन पे। कॉम्पिटिटर्स कौन है? जैसे जस्ट पे, पीसीकेटी, पेटीएम, मोबीक्विक, भारत पे, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द फोन पे। ग्रोथ की बात करें तो इसका ग्रोथ तो आप देख ही रहे हो कि लगभग 2017 में लगभग 10 मिलियन क्रॉस हो गया था इसके डाउनलोड, और अभी इसका वैल्यूएशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, 2 बिलियन आपके डॉलर मंथली ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो दे आर बेसिकली स्टार्टेड डिस्कवरिंग द मोर न्यू प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड दिस इज हाउ दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द फोन पे। So anyone have any doubt in the point of this phone pay? सबको clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How was the story? फोन पे तो सब यूज करते होंगे तुम लोगों में से, है ना? एंड Yes, फोन पे जो है, फोन पे को स्कैन करके यू कैन मेक द पेमेंट बाय यूजिंग द अदर एप्लीकेशन एज वेल, लाइक फ्रॉम गूगल पे यू कैन सेंड द मनी टू द फोन पे, फोन पे से आप गूगल पे भी, मतलब दिस इज हाउ इट इज अ यूपीआई बेस्ड ऐप, so it is working in so many era, मतलब बहुत so many sectors, sorry. So I guess this point is clear about the phone pay and existing business को purchase करने का system जो मैंने बताया, price से related, negotiation से related, clear है सबको? Everyone? Yes, ma'am. Okay. See you all in the next class.